हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12th का एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर 16। ये चैप्टर 16 जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम करेंगे इंडियन फिजिकल फीचर, यानी भारत के जो है देखा जाए तो भौतिक स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो होगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बिहार के बोर्ड के बच्चे, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विस्तार पूर्वक इसमें जो है काफ़ी कुछ है, तो ये चैप्टर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next important topic here, coastal plain. That is the most important for the exam view, coastal plain. What do you mean here, the coastal plain here? The Great Plateaus of India is surrounded by plains on all the sides. In the northern lies the Great Northern Plain, and in the south, along the east and west, lies there a coastal plain here. There is important here. The East Coastal Plain, first of all here, East Coastal Plain extends along the coastal Bay of Bengal for the Ganga Delta in the northern to be Kanyakumari in a south. The plain is bordered then to the western coastal plain, and this plain include to the deltas of the river Mahanadi and Godavari, Krishna and Kaveri here. Chilka is a polycat and the Kolahuris lake are of famous lagoons of this plain here. And this lake has been formed by the enclosing of a small part of the Bay of Bengal. Behind and sandbar, the lake Chilka is situated south of the delta of the Mahanadi. The lake of measuring 75 kilometers in a length. That is important here. The lake is a polycat, is situated northern and Chennai city. The Koluris lake is situated between to the delta of Godavari and Krishna river. The east coastal plain is a fertile where a rice of there grow in a plenty. That is important here. The next best coastal plain here extends along the Arabian Sea from to the run of the Kutch in the northern to the Kanyakumari in the south. There is important here. Best coastal plain extending along to the Arabian Sea from the run of the Kutch in the north to the Kanyakumari in the south. Expect of the Gujarat plain. The western coastal plain are notable than to the eastern coastal plain from a southern Gujarat up to Mumbai, and this plain is a comfortably bordered but is a narrow southward of the Mumbai's is occasionally is rocky domes and hill are visible in a plain of Gujarat. The run of Kutch and the plain of Kathiawar is the plain of Gujarat are made up to the black soil. This coastal strip extending from about 500 kilometers between to Daman and northern and Goa is the south is called Konkan. Konkan, there is an important. And this region is highly distracted and the coastal line is indented regularly with the several natural herbivores.
A number of small and seasonal rivers flow through this region. This is an important point. A number of small and seasonal regions flow through this region. The coastal Goa to be is a Mangalore is the called to the Karnataka coastal. That is important here. The coastal for the Goa to the Mangalore is the call to the Karnataka coastal, and this coastal is a Mangalore is about to the Kanyakumari is called there a Malabar coastal, and here the coastal plain is wider, and there are a number of long and narrow lagoons. There is important. There is a number of long and narrow lagoons. The 80-kilometer long Bevannes is an example of this kind, and Kochi part is situated on the one of the lagoons. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है तटीय मैदान, देखिए तटीय मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से हमेशा ही, तो इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। तटीय मैदान, तो देखिए हमारे देश का विशाल पठार चारों ओर से घिरा हुआ है। हमारे देश का पठार जो है चारों ओर से घिरा हुआ है, और उत्तर में उत्तरी विशाल मैदान तथा दक्षिण पूर्व में पश्चिम तटीय मैदान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान क्या है, कहते हैं उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ फैला हुआ है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि उत्तर में गंगा नदी के जो मुहाने हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ ये फैली हुई है। गंगा के जो है नदियाँ काफ़ी फैली हुई नज़र आती है, और पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में यह अधिक चौड़ा है। यानी देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये अधिक चौड़ा है, और इस मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा सम्मिलित है। यानी इस मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा सम्मिलित है, और इस मैदान में चिल्का और पुलिकट दो बड़े बड़े अनुपम लैंगून हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर दो लैंगून कौन कौन से हैं, चिल्का और पुलिकट। तो ये पूर्वी घाट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और इस झीलें जो होती है बंगाल की खाड़ी के थोड़े से जलीय भाग को बालू भित्ति के द्वारा गिर जाने से बनी हुई होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगर चिल्का की बात करें तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, और यह जो है 75 किलोमीटर लंबा भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर चिल्का के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, और ये जो है 75 किलोमीटर लंबा भी है। उसके पश्चात देखें तो पुलिकट झील की जो है चेन्नई नगर के उत्तर में है। तो पुलिकट झील जो है चेन्नई नगर के उत्तर में है, और गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य में कलारू के झील है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। और पूर्वी तटीय मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। यानी पूर्वी तटीय मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ है, और इसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये देखा जाए तो धान के फसल के लिए ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, पूर्वी तटीय मैदान। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो है उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ ये फैला हुआ है। तो पश्चिमी तटीय मैदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और ये जो है कच्छ के तट से लेकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ी है। कहते हैं दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक जो है पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, और पश्चिम की ओर काफ़ी संकरा हो गया है। यानी देखा जाए तो ये गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी मैदान में काफ़ी चौड़ी है, और दक्षिण की ओर काफ़ी संकरा हो जाती है। और गुजरात जो है कच्छ के रण तथा जो करवियावाड़ा के मैदान में कहीं कहीं जो है चट्टानी ढीले और छोटी पहाड़ी दिखाई पड़ती है। गुजरात का मैदान काली मिट्टी से बना हुआ है, और ये उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर की जो है तटीय भाग कोपन कहलाता है, और यह कटा फटा है, और इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ भी बहती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये काफ़ी कटा फटा है, और इसमें काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ जो है बहती है, और यह कई प्राकृतिक जो है पोतशय है, और गोवा से मंगोल तक ये तट के कर्नाटक तट तक कहलाता है।
यानी गोवा से लेके मैंगलोर तक जो है तट के कर्नाटक तट कहते हैं। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक ये तट को जो है मलाबार तट कहते हैं। और यह तटीय मैदान जो है कुछ चौड़ा भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। मलबार तट में अनेक लंबे और संकरे अनुपम है, और कहते हैं 80 किलोमीटर से भी अधिक लंबा जो है मेवानाडा ऐसा ही एक अनुपम है, और इसी पर जो है कचुक बंदरगाह बसा हुआ भी है। Our next topic is Indian Island. There is an important here. Indian islands here is important. There are two small group of island. There are two small group of island here. One of these is situated in the Bay of Bengal of the coastal Myanmar is known as the Andaman and Nicobar Island. There is important here. There is a two small group of island here. One of the situated in the Bay of Bengal of their coastal Myanmar is known as the Andaman and Nicobar Island, and the other is known as the Lakshadweep. The other is here second here, Lakshadweep actually in the Arabian Sea of their coastal Kerala. The Andaman Island is coasted of north, middle, and south, and a little Andaman Island. The Port Villars is the capital city of entire Union Territory and is located in southern Andaman Island. The Port Villars is the capital city of entire Union Territory and is located in the southern Andaman Island. And this island group is separated by the 10-degree channel. They are separated by the 10-degree channel. To its south are situated in the Nicobar Island. They include Car Nicobar, Little Nicobar or Great Nicobar Island from north to south. The southernmost point of the Indian Union lies a Great Nicobar Island, and he has been to name it after their Indira Gandhi. There is an important point here. The southernmost point of the Indian Union lies a Great Nicobar Island has been to name it after Indira Gandhi. There is a UPSC examination question here. And this island repeated as a submerged chain of mountains. The Barrenese Island is a Andamans is the Indian as the only active volcano. This island acts as the neighbors and air outpost of here. And our country is a view of its strategic location. And this island group face 7 countries. There is an important here. This island group face 7 countries here: Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Sri Lanka here. The Lakshadweep Islands are situated in the Arabian Sea off the coast of Kerala. All these islands are of the coral origin here, and they has been to built up by coral. The macroscopic polypus is all these islands are very small in a size. The largest island among these is the Minicoy has on the area of 4.5 square kilometer only. The Cavatrice is the capital city of Iceland group here. An important point here, the base coastal plain is extend along the Arabian Sea coastal, and there are coastal plain extend along the coastal of the Bay of Bengal. The east coastal plain are bordered than their best coastal plain here. The Lakshadweep Islands are situated in the Arabian Sea of the coastal of Kerala, and the Andaman and Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal of the coastal and Myanmar. And this location is highly strategic. There is an important point here. भारतीय द्वीप, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट आया है, भारतीय द्वीप। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अगर भारत में छोटे छोटे द्वीप समूह भी है, ये आप शायद आपको पता भी हो कि भारत में छोटे छोटे द्वीप समूह भी है, और यह द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर है। और देखा जाए तो ये काफ़ी अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा भी है, और इसका नाम तो आप भली भांति परिचित हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसे हम जो है भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरे का नाम जो है लक्षद्वीप है, और यह द्वीप समूह जो है केरल तट के कुछ दूरी पर
जो अरब सागर में स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि भारतीय द्वीप, तो भारतीय द्वीप में दो भागों में इसको विभक्त किया गया है, एक तो अंडमान निकोबार के रूप में और दूसरा जो है लक्षद्वीप के रूप में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अंडमान द्वीप में देखा जाए तो उत्तरी, मध्य, दक्षिण तथा लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित है। कहते हैं पोर्ट ब्लेयर नगर इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है, यानी पोर्ट ब्लेयर जो है नगर इस संपूर्ण संघ राज्य के राजधानी के रूप में जाना जाता है और ये दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है। और कहते हैं 10 अंश जलमार्ग इस द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और निकोबार द्वीप समूह जो स्थिति है, कहते हैं अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है और इस द्वीप समूह में कार निकोबार, लघु निकोबार तथा विद निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। भारत का संघ जो है दक्षिणम छोर वियत निकोबार द्वीप समूह में है। कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट भी रखा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इसका इंदिरा पॉइंट इसलिए पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ विजिट करने आई है और इसी के नाम से जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और यह द्वीप समूह समुद्री जल में डूबी पर्वत श्रृंखलाओं जैसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े जो है पर्वत श्रृंखलाएं जल में डूबी हुई है। अंडमान का बोलन द्वीप भारत का अकेला ही जागृत ज्वालामुखी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि अंडमान का बैरन द्वीप भारत का अकेला जो है जागृत ज्वालामुखी है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन द्वीपों में वायुसेना और नौसेना के अड्डे भी हैं। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वायुसेना और नौसेना के अड्डे यहाँ पर बनाए गए हैं। कहते हैं 7 देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो और श्रीलंका के प्रमुख इस द्वीप समूह की स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और भी बना देता है। कहते हैं लक्षद्वीप समूह जो है केरल तट के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है और यह सभी प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है और इसका निर्माण जय प्रवाल जैसे अत्यंत सूक्ष्म जीवों के चूने से बने कवचों के लगातार जमाव से हुआ है। तो देखिए कितना सूक्ष्म इसका निर्माण हुआ है। तो ये भली भांति आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के चूने से बने कवचों के लगभग जमाव से हुआ है और यह सभी द्वीप जो है बहुत ही छोटे हैं। इनमें सबसे बड़ी द्वीप जो है मिनिकॉय का क्षेत्रफल जो है 4.5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कवरत्ती इस द्वीप समूह की राजधानी है, यानी इस द्वीप समूह का राजधानी जो है कवरत्ती इस द्वीप समूह का राजधानी के रूप में जाना जाता है। यदि हम पॉइंट के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर जो है 3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको आपको समझना चाहिए। यहाँ पर पहला पॉइंट ये दर्शाता है कि अरब सागर तट के साथ साथ पश्चिमी जो है तटीय मैदान फैली हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान जो है बंगाल की खाड़ी के तट के साथ काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, अगर बात करें अगले पॉइंट की तो कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में काफ़ी अधिक चौड़ी भी है। ठीक है, कहते हैं लक्षद्वीप समूह अरब सागर में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इनकी स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दोनों प्लान जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं और काफ़ी ज़रूरी भी है एग्ज़ाम व्यू से। तो इसको अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो ही जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी सकोगे। ठीक है, तो इसमें साथ आपको एक बात और भी ध्यान रखना कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है अगले बच्चों से शेयरिंग भी करना है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है दूसरे बच्चों से शेयरिंग करता है तो उसमें दूसरे बच्चों का जो है कुछ भलाई जरूर छुपा हुआ होता है और त्रिपाण सेंटर हमेशा दूसरे की भलाई के लिए ही अग्रसर है। तो आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत ही कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है लगा देना है। जिन बच्चों के सिलेबस में ये होगा वो देखेंगे, जिनके नहीं होंगे नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य कर दिया, तो ये ज़रूरी बात आता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप यूट्यूब पे अगर सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर जो है त्रिपाण सेंटर नहीं मिलेगा, आपको कोई और वीडियो नज़र आएगी। अगर आप त्रिपाण सेंटर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वहाँ पर जो है आपको चैनल का जो है मेन होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पे जो है प्ले लिस्ट के ऑप्शन आएगा, वहाँ पर सभी क्लास वाइज सभी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है रखे हुए। तो आप किसी को भी जिस क्लास में आप होगे उस क्लास के वीडियो को जो है अच्छे से देख सकोगे, चला सकोगे, समझ सकोगे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे।